So welcome back. This is lecture 4 of PGBP and this for CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, तो ये हमारा lecture 4 है PGBP का. So let us continue. हमने expenditures allowed as deduction तक हमने देखा. नहीं, sorry. हमने expenditure income not taxable under PGBP we had seen. Okay, ये देखा हमने. 5 income थे which were not taxable. Next point we'll see is expenditure allowed as deduction. Okay, so under this, okay, we all know that PGBP basically, largely speaking, is taxability of business revenue profits, correct? So capital versus revenue expenditure में capital expenditure is disallowed unless expressly allowed by any section. Unless कोई section expressly allow करता है capital expenditure को, normally वो disallowed रहेगा. Okay, capital expenditure will be normally disallowed. Revenue expenditure will always be allowed. Okay, unless something specifically disallows it, otherwise it will be allowed. Okay, expenditure of non-assessable business non-deductible. यानी आप कोई business है जिसका income exempt from tax है. Okay, so now government तो आपसे टैक्स तो ले नहीं रही वो बिजनेस का, तो उसके ऊपर से आप उस बिजनेस के एक्सपेंसेस को दूसरे बिजनेस में ऑफसेट नहीं कर सकते ना. करेक्ट, यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपका एक बिजनेस है जिसमें आपका सपोज नॉन एसेसिबल बिजनेस में जिसमें विच इज एग्जेम्प्ट. ठीक है, ये है हमारा डेबिट, दिस इज योर क्रेडिट. ओके, दिस इज योर ट्रेडिंग इन P&L. Okay, so say here you have got 500, 300, okay, 800. Okay, and here you have an income of 2000. ठीक है, ये कितना हो गया? 800 और 800 हो गया 1600. okay, so your profit here is 4000. ठीक है, sorry 400. ये आपका, this is your profit. नॉन एसेसिबल बिजनेस में ये प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं, जो आपको प्रॉफिट टैक्स नहीं कर रहा है तो इसका एक्सपेंडिचर क्या आपको दूसरे बिजनेस से ऑफसेट करने देगा? यू हैव अनदर बिजनेस जिसमें योर प्रॉफिट इज से 4000. आप ये और एक बिजनेस है, ठीक है, अनदर बिजनेस. आप बोल रहे हो कि ये मेरा 500 रुपए इसमें से ऑफसेट करो, ये ऑफसेट करो इसमें से, तो करेगा? ऑलरेडी आपको ये फ्री में, इसके फ्री दे रहा है इसको. ओके, यू आर ऑलरेडी नॉट पेइंग टैक्स फॉर दिस. इसमें लेना था वही नहीं दे रहा है, उसके ऊपर से इसके एक्सपेंडिचर थोड़ी ऑफसेट करने देगा, राइट? सो नॉन एसेसिबल बिजनेस जो है उसके एक्सपेंडिचर्स आप एसेसिबल बिजनेस के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते. ओके, यू कैन नॉट ऑफसेट एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन एसेसिबल बिजनेस विद एसेसिबल बिजनेस. एसेसिबल मतलब taxable, non-assessable means not taxable. Then expenditure must relate to business of the SSC. Okay, of course, important point, must relate to the business of the SSC. Anticipated loss is not deductible, हमने पहले ही देखा था. Okay, it is not deductible. Provision for doubtful debts is not deductible. ठीक है. Notional expenditure, it is rent to proprietor, salary to proprietor, not deductible. You already seen this, right? और ये सब चीजों में for an expenditure to be allowed as deduction, onus of proof lies with the SSC. SSC will have to give proper proof that it is an allowable expenditure. ठीक है, onus to proof दो जन के बीच में होता है. Either it is with the AO, either with the SSC. AO क्या है? What is AO? Assessing officer. Yes, AO is assessing officer. So PGBP में डिफरेंट केसेस कुछ हो रहा है.
या तो ओनर्स ऑफ प्रूफ बोलते हैं इसको, वी कॉल इट एज ओनर्स ऑफ प्रूफ, यानी इसका प्रूफ देने का जिम्मा किसका है, कोई भी चीज का, एनी पर्टिकुलर थिंग, आइदर इट विल बी ऑन असेसिंग ऑफिसर, ओके, so onus to proof will be either on him or on him, okay, दोनों में से एक पे रहेगा onus of proof always, कहीं इस पे रहेगा कहीं उस पे रहेगा, okay, somewhere it will be on him, somewhere it will be on the other side. So for all these expenditures allowed as deduction, onus to proof is with the SSE, okay. अब इसके बाद हम आ रहे हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस पीजीबीपी में. व्हाट आर द स्पेसिफिक डिडक्शंस व्हिच वी गेट. पीजीबीपी कैसा होगा, बेसिकली इट विल बी लाइक योर नॉर्मल पीएनएल, ओके. आपका यू विल टेक योर इनकम, शॉर्ट टेस्ट में बता रहा हूं, इनकम लेस डिडक्शंस विल गिव यू प्रॉफिट और विल गिव यू पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ठीक है, शॉर्ट टेस्ट एकदम. ठीक है, तो अब ये जो डिडक्शंस है हम इसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिडक्शंस अलाउड. ओके, तो अभी नाउ सेक्शन 29 जो है दिस, ये हमको बताता है व्हाट आर द स्पेसिफिक डिडक्शंस. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ओके. इनकम इज कंप्यूटेड एज पर दीस सेक्शंस 30 to 43 DB which decides the admissibility of expenditures. कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आपको ऑफसेट आप कर सकते हो फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी, ओके. द एक्सपेंसेस व्हिच यू कैन चार्ज, ओके, फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओके. सो ये जो 30 to 43 DB, ये सारे जो सेक्शंस हैं, इट विल ऑल टॉक अबाउट वन बाय वन. आप इसको इसको आप you can claim deduction for this, then you can claim for this, एक एक करके हम पूरा देखेंगे, okay. That is this section 30 to 43 DB. ठीक है, so first is we'll start with rent, rate, taxes, repairs and insurance for building. ठीक है, ये बिल्डिंग के लिए याद रखना, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग. इसका शॉर्ट याद रखना RRIT, ओके. RRIT इसका एक्रोनिम है, जिसमें R इज रेंट, ठीक है, दूसरा R इज रिपेयर्स, ओके. रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्स, इंश्योरेंस, और लास्ट जो है, लास्ट इज दिस टैक्स. रेट्स और टैक्सेस का एक ही मतलब है, ओके. ओके, सो RRIT इज रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्स. ठीक है, सो दिस इज an admissible expenditure, okay. Or building must be used for the purpose of business or profession, very important, must be used for the purpose of business or profession. ठीक है, rent paid to proprietor is disallowed, ठीक है, क्योंकि वो खुद का है, but rent paid by firm to partner is allowed. ठीक है, ये हो सकता है कि एक पार्टनर का घर है और पूरा फर्म उसको रेंट दे रहा है, ओके. देन इस केस में दे आर नॉट टेकिंग इट एज खुद ही उसने किया है करके, ठीक है. सी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वन थिंग टू रिमेंबर इज पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, नॉट एज पर कंपनीज एक्ट. ठीक है, कंपनीज एक्ट में partnership firm and the members, they don't have, they are seen as one and the same under Companies Act, but in Income Tax Act उनका separate legal entity माना जाता है, okay. ठीक है, so ठीक है, ये बात याद में रखना, ठीक है. रेंट पेड टू प्रोप्राइटर डिसअलाउड हो तो सीधा सीधा मालूम नहीं है आपको, सोचना भी नहीं है, बस ये याद रखना है आपको. ओनली हैव टू रिमेंबर दिस. रेंट पेड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर, एक पार्टनर के जगह में हम लोग फर्म चला रहे हैं, वो पार्टनर को तो पैसे देने पड़ेंगे ना. नॉर्मली भी आप सोचोगे तो अगर 5-6 पार्टनर मिलके कुछ चला रहे हैं, ओके. If there are 5-6 partners who are running a business and the area is of one of the partners, then everyone will have to pay rent to him, right? So that's why this is allowed to the firm, okay. Now current repair versus capital repair, only current repairs are allowed, remember.
Okay, current repairs allowed. Capital repairs are not allowed whether the assessee is a tenant or landlord. As per PGBP, only current repairs are allowed. ठीक है, जो आप थोड़ा if you are just थोड़ा सा पाइप वॉश कर लिए या थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर लिए, that is fine. But capital repairs में कोई भी there will be a new advantage which you will get. It's called capital repairs. ठीक है. Current repairs is about maintenance. ठीक है. So only current repair is allowed. ये याद रखना. Municipal taxes, rates and taxes, okay, land revenue, municipal tax, etc. are deductible on cash basis. We've already always seen that municipal tax, house property may be, it is deductible on cash basis, correct? Right? Here also it is deductible on cash basis. So easy to remember now. Same treatment in both. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखे. इसमें क्या क्या देखे हमने? We have seen rent. ठीक है, rent is allowed, बस इतना याद रखना, rent to proprietor disallowed, firm to partner is allowed for firm. Okay, rates and taxes allowed but not on cash basis. Whatever you have paid, it will be allowed. ठीक है, repairs में current repairs are allowed, capital not allowed. ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में कुछ सेपरेट नहीं बोला गया, but insurance for building is allowed. There is nothing special to tell about it, so it's not there. Okay. इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप भरते हो फॉर बिल्डिंग, दैट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज योर RRIT. ठीक है, अब दूसरा जो रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्स. सेकंड वाला जो रहेगा ना, इट विल ये बीच वाले जो रहेंगे RI, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ओनली इज अलाउड. क्या है सेकंड वाला? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर. याद रखना, पहला वाला वाज बिल्डिंग, only with relation to building. Second is deduction with regard to machinery, plant and furniture. Okay, repairs and insurance. Okay, so rent is not allowed यहाँ पे, correct? इसमें भी everything, first thing is used for the purpose of business or profession. Okay, used for the purpose of business or profession होना चाहिए. Partly used है business or profession में, सिर्फ proportional deduction as allowed by AO. ठीक है, AO है ना assessing officer ने जैसे देखा already. So if partly used for business or profession, proportional deduction ही मिलेगा आपको, वो भी जो AO allow करता है. Your power is there to AO. Okay, assessing officer can allow and disallow some part. Okay, so actually what is allowed is proportional deduction. For example, 50% you are using for business, 50% for personal purpose. Okay, so only 50% will be allowed as deduction. Okay, so only current repairs here also, both cases current repairs, there also, here also, right? Building also, here also. And so now you can ask me this question, sir, what if he gets it on hire? You can get machinery, plant on hire also, right? In that case, the rent paid should be allowed, isn't it? It's an expense for him. So it is allowed, but it is not allowed under this section. There's a residual section where anything which has been missed by these sections, they have created a residual section just in case to cover everything. That is section 37(1). Okay, so rent paid for use is also deductible. So that way, if you see here also, actually rent is deducted. Rent, you can say rent, repairs, insurance. Okay, there's no such tax to be paid on machine, right? So tax is not there. Okay, ठीक है, ये हो गया 29 अपना 29, 30, 31. 30 was building, 31 is your plant and machinery. 32 is very important, depreciation. ठीक है, 32 is depreciation. So depreciation, of course, assets में मिलता है depreciation, correct? So tangible assets, जिसको आप you can touch, feel and all, that is tangible assets. Okay, building, machinery, plant, furniture. These are the four main blocks. Intangible assets, know-how, copyright, trademark, patent,
license, franchise, or any other business or commercial rights of similar nature acquired on or after 1/4/1998. Okay, just याद रखना, acquired on or after 1/4/1998. गुडविल पे डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता, ठीक है, जस्ट याद रखना, एक्सक्लूडेड इज गुडविल, ऑल अदर intangible assets you can claim depreciation on that. It should be acquired on or after 1/4/1998, ठीक है। और now conditions for depreciation क्या है, सिंपल है, एक है asset must be owned, correct, used for the purpose of business or profession, हर बार में हम ये बोल रहे हैं used for the purpose of business or profession, okay, we are saying this for everything. So asset must be owned and used for the purpose of business or profession. These two are satisfied, you will get depreciation, okay. And then some other points is for beneficial owner, depreciation is admissible, okay. Person who is the beneficial owner, for him it is admissible, and it will be given only to one person. If the legal owner is not claiming it and the beneficial owner is using it to the full extent, okay, then it will be admissible to him, then it will not be admissible to the legal owner, okay. So as such, यहाँ पे beneficial owner has not been excluded, so beneficial owner can claim depreciation. Co-owner, दो जन का अगर asset है और anything like that, any asset or it is owned by two people, then proportionate basis. What proportion you will choose? Based on our interest. मेरा 30% स्टेक है, आपका 30% स्टेक है, थर्ड पर्सन का 40% स्टेक है, डेप्रिसिएशन भी वही रेशियो में मिलेगा, ओके। डेप्रिसिएशन आल्सो विल गेट इन द सेम रेशियो. इफ माय स्टेक इज 30%, yours is 30%, third person's is 40%, then we'll get depreciation in the same ratio. The property acquired on hire purchase, though we know that in hire purchase the ownership is transferred when the last installment is paid, right? So but in hire purchase assets you can claim depreciation, it's treated as your own, ठीक है, आप ले सकते हो हायर परचेज एसेट में डेप्रिसिएशन, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी बाय एसएससी, ठीक है, डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल, ठीक है, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर यू डू यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन इट, ओके। एंड पैसिव यूज वर्सेस एक्टिव यूज, पैसिव यूज मींस रेडी टू यूज, ठीक है, अब ये दोनों में एडमिसिबल होता है, और पैसिव एंड एक्टिव यूज, ओके। पैसिव यूज, Sir, I have one doubt. हाँ, one moment, complete this point. So for passive use, मान लीजिए मेरे पास मैंने I have bought a generator, ठीक है, जनरेटर मैंने लिया है, ओके, और उसको I have installed on 1st April 2021, ठीक है, but the electricity supply is so good that ये पहले जनरेटर तभी यूज होगा ना जब करंट जाएगा आपका, ये पहला बार यूज हुआ मेरा जून में, ठीक है, तो क्या आपको जून से डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आपका यूज नहीं हुआ था यहाँ तक, ऐसा नहीं, करेक्ट, इट इज रेडी टू यूज, राइट, इसको बोलते हैं पैसिव यूज, यानी ये तैयार है इसको सपोर्ट देने के लिए, दैट इज पैसिव यूज, ऑल्दो इट इज नॉट यूज्ड इटसेल्फ बट इट इज कॉल्ड एज पैसिव यूज। सो जनरेटर को भी आपको पहले 1st April से आपने लगा दिए ना, आपने कनेक्ट कर दिए, you will get full year's depreciation from 1st April, ठीक है, समझ गए? Yes, Himanshu. Sir, in last paragraph we read there are two conditions to get deduction. One is ownership and other one is use for business, right? Yeah, asset must be owned and used for the purpose of business or profession. But later on we are studying if the asset is on hire purchase, then also we can get the deduction. So both are clashing. Yes, so basically, you know, when they say they are owned, okay, they have given some explanation on that further, okay. So most of these have also come because of court cases and all, and these points have been added gradually, okay. So you will read this in
along with this, okay, ये पहला पॉइंट आपके जो कंडीशंस 1 एंड 2 है, इसको आपको ये जो पॉइंट्स नीचे मैंने दिया हूं इसके साथ में पढ़ना है। ओके, these two you have to read together because some of these ये जो passive active use ये सब कोर्ट केसेस से आए गए हैं सब, इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं which have been added interpreted by courts. Okay, so which is why if conditions for claiming depreciation you have to see as all these points together. ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कहां तक हो गया था ये पैसिव यूज ना। देखिए पुट टू यूज मतलब जो है, देखिए जब नेहा's क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडी टू यूज एंड पुट टू यूज। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो जब कोई एसेट जो है रेडी टू यूज होता है तब वो पुट टू यूज भी हो जाता है। ठीक है, और लेकिन आपका कोई एसेट आप पुट टू यूज कर रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं वो एसेट रेडी टू यूज है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो ये भी हो सकता है। ठीक है, सो पुट टू यूज अनदर थिंग। पुट टू यूज हमको बेसिकली ये बताता है कि फ्रॉम दिस डेट। Sir, I think put to use can be said when some asset need installation. Like मैं कोई टेक्निकल मशीन लाया, सपोज फ्रॉम प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ट्रांसफार्मर लाया, उसको जब मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा ना, जब तक वो पुट टू यूज नहीं माना जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर सकते हैं? हाँ, रेडी टू यूज है कि करेक्ट, वो भी एक केस है लैपटॉप पुट टू यूज का। आपने जो कोई बोले ना, लैपटॉप लाए ऑफिशियल वर्क के लिए, वो रेडी टू यूज है, उसको इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो रेडी टू यूज में जैसे मैंने अभी आपको जनरेटर का एग्जांपल दिया ना, तो जैसे जनरेटर है आपका, ठीक है, ये आपने डायरेक्टली यूज नहीं किया अभी, लेकिन ये आपका आपने सर्किट लगा दी है इसका। ओके, सो इट बिकम्स रेडी टू यूज। जैसे पुट टू यूज में आपने जो एक बोले जिसमें इफ यू नो आपने इंस्टॉलेशन वगैरह कर लिए हैं, ओके, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। और दूसरा कुछ है जो आपने खरीदे हैं, आपने किसी चीज से आपने कनेक्ट कर दिया, सपोज यू हैव कनेक्टेड इट एंड इट यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, वो भी हो गया पुट टू यूज। सिर्फ हर चीज में वी विल नॉट नीड इंस्टॉलेशन, राइट? Not all kinds of assets you will need an installation. तो इसीलिए पुट टू यूज मतलब ये है इन जनरल कि आप वो एसेट आपने काम में ला लिए हैं अभी। ठीक है, आज वो एसेट ला लिए, से आपने प्रिंटर लाए दुकान में और आपने लगा दिए हैं, ठीक है, वो काम में आ गया है, उस डेट से आपको डिप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा। अब रेडी टू यूज जो है ना, ये वर्ड आया है जस्ट पैसिव और एक्टिव यूज को में फर्क बताने के लिए आपको। ठीक है, पैसिव एंड एक्टिव यूज। ओके, जब आपका so यहाँ पे बोल रहा है आपका जब पैसिव यूज भी हो रहा है, जैसे जनरेटर है, तो वो भी पुट टू यूज हो गया आपका। जो एक्टिव यूज है वो भी पुट टू यूज हो गया आपका। इन दी एंड हम चाहते हैं कि योर एसेट शुड बी पुट टू यूज। वी आर वरीड अबाउट द डेट व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज, क्योंकि उस डेट से ही आपको एसेट का डेप्रिसिएशन मिलना चालू होगा। ओके, so which is why we want put to use. ये जो है ready to use is only to explain the difference between passive and active use. ये बताने के लिए कि जैसे जनरेटर है, उसको आपने बस कनेक्ट किया, वो यूज नहीं हुआ, 6 महीने जरूरत ही नहीं पड़ा उसका। ओके, स्टिल it's a passive use and it has been put to use. ठीक है, तो चलिए सुन आगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमने देखे थे पहले ही, राइट? ये वाला जो है partly used for business or profession, you'll get proportionate depreciation, okay, as determined by AO. ठीक है, and then house property let for smooth running of business. ठीक है, ये भी हमने देखे थे, जो वर्कर्स वगैरह को जो हमने दिए थे, we had given it to workers and all, okay, that is admissible and rent is chargeable as PGBP. Okay, so जो हमने whatever we have given to workers and all, if the rent is being chargeable to PGBP, then your depreciation will also be admissible, correct? ठीक है, दोनों भी रहेगा। जैसे आपका
अगर उसका इनकम आप पीजीबीपी में आ रहा है तो उसका एक्सपेंस भी अलाउेबल होगा आपको. ओके, if the income is chargeable as PGBP, your expense will also be allowable. And then section 53A of Transfer of Property Act, that is that possession one. Okay, that possession has been taken, but the property has not been transferred in your name fully. Okay, depreciation is allowable for the person who has taken possession. Okay, he is deemed to be the owner for all practical purposes. Okay. Now, for charging depreciation, assets are categorized as block of assets. ठीक है, block of assets means a group of assets of same nature in respect of which same rate of depreciation is charged. ठीक है, अभी देखिए इसमें जो है हम जब टैक्स में one thing I'll tell you, जो depreciation आप हम करते हैं, okay, in accountancy and taxation. ठीक है, treatment of depreciation in accountancy and taxation. ठीक है, so accountancy में क्या है, there are 4 main blocks: building, machinery, furniture, plant and machinery, ठीक है, और कौन सा मिस कर रहा हूँ मैं? Building, furniture, machinery, and intangible assets. ठीक है, so there are main 3 इसमें: building, furniture, machinery, और वो जो intangible assets है, okay, patent, trademark and all that. ठीक है, अब ये हैं, these are the main. इसके अंदर भी जो है बिल्डिंग में ही अलग अलग परसेंटेज रहेंगे. कुछ बिल्डिंग का आपका इट विल बी 5%, कुछ बिल्डिंग का आपको रहेगा 10%. ओके, तो कौन से बिल्डिंग का क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल सी. ठीक है, वैसे ही फर्नीचर का भी रहेगा सेम. ओके, प्लांट एंड मशीनरी के भी डिफरेंट टाइप्स रहेंगे. तो नाउ you will have, say, ये सब कैटेगरी है. ओके, दिस इज द कैटेगरी प्रोवाइडेड इन टैक्सेशन. अब ये 5% कैटेगरी में से इफ यू हैव गॉट बिल्डिंग्स ए बी सी डी, ठीक है, सो इसको बोलते हैं बिलोंगिंग टू द सेम ब्लॉक. दे आर सेड टू बी बिलोंगिंग टू द सेम ब्लॉक. ठीक है, बिल्डिंग ही है 10% है, इट इज ई एंड एफ. ओके, सो नाउ these two are not said to be belonging to the same block. ठीक है, ये बिल्डिंग 5% वाला है and this is building, this one is 10%. okay, so ऐसे ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन. ओके, सो विल सी कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ऑल दैट विल सी. ठीक है, सो तो ये जो डिफरेंस मैं बोल रहा था आपको ऑफ अकाउंटेंसी एंड टैक्स, ये जो है ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट है. ठीक है, यार इंडिविजुअल एसेट्स है. यस, करेक्ट. सेम रेट सेम नेचर. सेम रेट सेम नेचर इज सेम ब्लॉक. ओके, so here you we do depreciation on individual assets, here on block of assets. Okay, here we will see one thing, that there are only here, say you have bought the assets during the last 3 months. For the last 3 months it is there with you. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू बॉट इट ऑन January 1st. आप January 1st को लिए, 3 महीने आपके पास था. आप क्या करोगे, 3/12 करोगे ना depreciation. We'll do 3/12, isn't it? तो यार ऐसा नहीं होता है in taxation. आप या तो you have to take 100% full or you have to take 50%. ठीक है, 50% आप कब लेते हो, जब आपका
180 days or more used, 180 days or more. Okay, then 50%. 180 days or more है तो आपको 50% लेना है. So 180 ठीक है? days less now. Less, yeah, less than 180 days, correct. Okay, so if 180 days or more you have used, okay, you will give 100%. If it is less than 180 days, you will have to give 50%. इसमें बस दो ही ट्रीटमेंट होता है. ओके, इसमें आपको कितना भी महीना आप यूज किया, आपने 5 months यूज किया तो यू विल से 5/12 into 5/12. ओके, तो ऐसा ये सब काफी डिफरेंसेस है बेस्ड ऑन ये. और यहाँ पे क्या होता है ना, इन ब्लॉक ऑफ एसेट्स वी विल सी कि जैसे आपके इन योर ब्लॉक, इन वन ब्लॉक वगैरह देखेंगे हम डिटेल में. इन वन ब्लॉक okay, say you have got 4 assets. ठीक है, 4 में से 3 भी बिक गए आपको, 3 sold, एक भी है, you will continue to get depreciation on this block. If 3 are sold, 1 is there, then you will get. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा it's one asset and if that asset is sold, वो account will be closed. ठीक है, यहाँ पे it's not based on one asset, the identity is based on the block. ठीक है, तो ये सब differences हमारा टैक्सेशन और इसमें है. सो यू विल, अभी ये थोड़ा सा ही मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको एज ऑफ नाउ. जैसे जैसे हम वी विल सी दिस डेप्रिसिएशन चैप्टर मोर, यू विल गेट मोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. ओके, सो टू फॉल इन द सेम ब्लॉक, व्हाट इज रिक्वायर्ड? सेम नेचर and rate must be same. Asset must be of same nature, that is, it should either be furniture, it should either be building, that is nature. Okay, which among those 4 categories. Okay, and then the rate also should be same because each category has multiple rates, right? इसीलिए आपको वो भी ये होना चाहिए. और इसमें अच्छा और एक डिफरेंस आपका अकाउंटेंसी और इसमें, you have to use written down value methods, WDV आपको यूज करना पड़ता है. Okay, there's only one case where you can use straight line methods, that is for power generation and distribution units. एक ही है जिनके पास ऑप्शन होता है, they can take this or that. Otherwise for all it is WDV method only, whereas there you have got many options, you can choose your options. Okay, in your accountancy. Okay, this is one more difference, just in case they ask, you easily have 4 points then and there you have. Okay, ये सब चीजें यहीं की यहीं कर लेना, बाद में आप कर नहीं पाओगे, अपने मन से लिख के देख लेना. 4 पॉइंट आप लिख पा रहे हो क्या? वैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा यू विल गेट मोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. ठीक है, सो लेट्स सी नाउ कैलकुलेशन. उससे पहले मैं आपको एक, आई विल जस्ट शो यू वन ब्लॉक. ठीक है, ये है आपका एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स और जो डेप्रिसिएशन रेट, वी ओनली हैव सम जो हमको चाहिए. ठीक है, नाउ द हाईएस्ट रेट इज 40%. पहले 100% हुआ करता था. ओके, नाउ द हाईएस्ट रेट इज 40%. ओके, सो now in buildings we have got 3. First one is buildings, इसको याद कैसे रखना है मैं बताऊंगा आपको. So this will be one is 5%, it is residential building. Okay, and non-residential buildings are go down, office, factory, hotels, boarding, that is 10%. ठीक है, temporary construction is 40%. ठीक है, so now for residential building, okay, tell me for my house, which of these percentage I'll get? Which of these percentage will I get as 5%. 5%. 5%. Any other answer? Any other answer?
यूज फॉर बिजनेस पर्पस, हाँ नेहा, यूज कर रहे अपने बिजनेस पर्पस के लिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, टाइप कर दो आप। सर आप अपने हाउस का बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो पूछ रही है। नहीं, मेरा घर तो फिर बोल रहा कैसे हूँ मिलेगा, कैसे मिलेगा डेप्रिसिएशन? ये हमने अज्यूम किया क्या? अरे सर आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा तो हमने अज्यूम कर वही लिया। तो मेरा कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक सर है। आपने मेरा वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा घर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा, हमने सोचा आप अपने घर में क्लेम नहीं यूज कर रहे करेंगे हैं। डेप्रिसिएशन। आप एज ए सीएमए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर में, तो हमने अज्यूम कर लिया एज ए प्रोफेशन आप यूज कर रहे नहीं हैं, तो नहीं उसको नहीं, माय हाउस 5%। मैं बोल रहा हूँ, माय हाउस ना, हाउस बोलूंगा तो यू हैव टू कंसीडर इट एज रेजिडेंशियल। बिजनेस या कुछ है तो मैं उसमें ऐड करूंगा ही। अगर आप अपना घर बोलते हो तो आप नॉर्मली वो घर में आप रहोगे ना। ओके, हाउ कैन यू अज्यूम कि मैं प्रैक्टिस करूंगा? सो बेसिकली ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फिर ये क्या बोल रहा है रेजिडेंशियल, इसको 5%। सर इन केस आप अपने रेजिडेंशियल हाउस में या कोई भी वो वहाँ प्रैक्टिस करता है लाइक कि प्रोफेशन। ऊपर अपना घर है, नीचे दुकान दुकान खोल हाँ दिए, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगा, उससे 5% क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। यस, या फिर अपने घर रेजिडेंशियल घर में प्रैक्टिस करते हैं तब 5%। करेक्ट। और एक और कुछ एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे आपने अपने वर्कर्स लोगों के लिए फ्लैट वेट बनाए हैं, ठीक है, तो रेजिडेंशियल यूज के लिए इंसिडेंटल टू बिजनेस वाला जो हमने देखा था ना, वो सब चीज जो बनाए, दैट इज प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, राइट। तो वो सब चीजों में 5% मिलेगा। सो जस्ट रिमेंबर ऑलवेज, दिस इज नॉट फॉर योर रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। दिस रेजिडेंशियल मीन्स इट इज नॉट योर हाउस प्रॉपर्टी, नॉट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ये नाम रेजिडेंशियल देख के तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं है। ये बिजनेस यूज का है, बट जो रेसिडेंस के लिए सिर्फ रहने के लिए यूज हो रहा है, ओके। एज अपोज टू गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री, होटल्स, बोर्डिंग, ये सब कमर्शियल पर्पस में यूज हो रहा है ना सर, इट्स डिफरेंट टू दैट, ठीक है। सो ये है। अच्छा, अभी एनीवन वुड लाइक टू कंटिन्यू फॉर अनदर सेशन, या आप लोग यू आर टायर्ड एंड वांट टू कंटिन्यू टुमारो? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करो फिर डिसाइड करेंगे। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन करो 1 मिनट के लिए, फिर डिसाइड कर लेंगे।